Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, welcome back once again, and let's get started with our chapter number 1. Well, not started as such, continuation. Till now, ये जो है, okay, अब ये क्या है? That's obviously the cover of your textbook. Abhi mat khareedna if you are watching this lecture, because I know there is such a lot of confusion about results, and then later on about the CET, and then uske baad mein about the admission process, and uske baad mein actual admission, and uske baad mein college hoga nahi hoga. Such a lot of confusion. But in all of this chaos, अगर आपको किसी ने बोला है कि स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे आपके लेक्चर्स अकाउंट्स के स्टार्ट हो चुके हैं और आपने वो लेक्चर्स देखने स्टार्ट कर लिया है, अमेजिंग. सो राइट नाउ और बिफोर दिस, इन आवर लास्ट 2 or 3 lectures, I think so, concentration was on bookkeeping. But if you read the पूरा नाम क्या है, bookkeeping and accountancy. So there is a difference between the word bookkeeping and there is a difference in the word accountancy, and today that is exactly what I am going to tell you. Okay, उसके बाद obviously हम लोग accountancy के अंदर ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि normally bookkeeping आजकल मतलब कुछ सालों से बुक के अंदर, बुक मतलब किताब ना, so simple as that, okay, बंद हो चुका है. Now hold on, let me explain to you कि ये डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में. ओके, लेट मी ट्राई. मैंने बुक कीपिंग के बारे में आपको क्या बोला है? रिकॉर्डिंग. क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? जो हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर उधर, दाएं बाएं 360 डिग्रीज का रिकॉर्डिंग. एंड आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि रिकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइल्स में होता है. साउंड का रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है, इमेज का रिकॉर्डिंग होता है, etc, etc, etc. Okay, today what you understand is कि bookkeeping actually is the छोटा मुद्दा, accountancy is the बड़ा मुद्दा. Please understand that. ये बहुत बहुत important है जानना कि बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बट उसके अंदर 99.99% आजकल अकाउंटेंसी ही होता है. बिकॉज बुक कीपिंग का मतलब क्या था? एक रिकॉर्ड रखना. आजकल, चलो आजकल नहीं, थोड़ा पुराना जाते हैं, पुराना नहीं बहुत पुराना, कि रिकॉर्ड्स वो केप्ट वे इन बुक्स. एंड हाउ वर दे केप्ट? वेल, पेन बुक राइट, पेन बुक राइट, एवरी डे ओपन बुक राइट, ओपन बुक
राइट. सो दीज वर द रिकॉर्ड्स दैट पुराने ज़माने में वेदर वो जो कंट्री है उस भाषा में लिखा जाता था. यहाँ पे तो मतलब लैंग्वेज इतनी स्टाइलिशली कैलीग्राफी के स्टाइल में लिखी गई है, बट नेवरदलेस ओके, दिस इज व्हाट वाज बुक कीपिंग, records to be kept in actual books, and for a long time it was continued not by various organizations, even individually मतलब maybe your nana nani, maybe your mom and dad may say ke when I was a teenager, when I was somebody going to a school, I used to keep a diary, and in that diary whatever used to happen on a daily basis, at the end of the day, for keeping a record, I used to write. Okay, in fact क्योंकि काफ़ी बड़े महारथी ज्ञानी लोगों ने ओके लेट्स से मेडिसिन्स में ओके उन्होंने आयुर्वेदा, उन्होंने होम्योपैथी, अलग अलग मेडिसिन्स के डिपार्टमेंट होते हैं ओके. तो ऋषि मुनि लोगों ने, डॉक्टर्स ने पुराने ज़माने के, दे रोट बुक्स में. तो इसके लिए आजकल मॉडर्न कंपनीज को पुराने फॉर्मूलाज पता है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन, वो पर्टिकुलर साबुन, वो पर्टिकुलर टूथपेस्ट को, बिकॉज इवन दो टुडे इज़ अ मॉडर्न एज, इट इज़ ऑल artificial intelligence and computers and mobiles and Android operating systems, etc. But companies, and many companies, are now going in their products backward. They are going organic, मतलब chemical free. ये केमिकल अच्छा नहीं है. पीपल हैव गॉट कॉन्शियस, तो वो पीछे जा रहे हैं. पीछे वो जाकर उनको कैसे पता चला कि ये टूथपेस्ट में उन लोगों को कौन सा हर्ब्स डालना है जिससे वो हर्बल बन जाएगा. देयर आर रिकॉर्ड्स बुक्स में, किसी न किसी, जैसे ये पर्सनल रिकॉर्ड्स है ओके. ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एवरीबडी और मैनी डू बुक कीपिंग. द ओनली डिफरेंस टुडे इज व्हाट, पहले वो बुक में था, अभी एक डिजिटल डिवाइस पे हो चुका है. तो इट कैन बी लाइक वेरी कॉस्टली, पैसा रहेगा तो ये जो एप्पल आईपैड आता है, मे बी यू कैन बी द पेन हैज़ गॉट रिप्लेस्ड विद स्टाइलस ओके. एप्पल का नहीं होगा तो सैमसंग का रहेगा, ये वाला हो सकता है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, बुक कीपिंग मेंट वॉट, बुक्स में रिकॉर्ड रखना. Till today the records are being kept, the only thing is from a book it has been transferred because there had a lot of disadvantages. The first book that I showed you वो इतना पुराना हो चुका है कि it will not last long. Obviously it must have lasted for hundreds of years, but how long? It has to be preserved. So everything is being converted into digital knowledge. Okay, so what do you have to understand कि bookkeeping and accountancy में ना फ़र्क क्या है? Let me explain that to you. Okay, you see two images here. This is a different one, this is a different one. Difference क्या है दोनों में? You see, this is a desktop machine. It's a computer, okay, but it's not a laptop, it's not a mobile device. हाँ, तो इसमें क्या है, आपको लॉन्ग टाइम बैक ना कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में पढ़ाया गया रहेगा. देयर इज अ स्पीकर, देयर इज अ कीबोर्ड, देयर इज अ मॉनिटर, देयर इज अ CPU, etc. These are all called as the hardware. Bookkeeping can be compared to the hardware. But चलो बुक तो लेके आ गया, how will it run? What rules am I supposed to follow? What steps am I supposed to follow? You see, this hardware is of zero if there is no software, and Windows becomes the software. The Windows operating system, which is the software, मैं Windows की बात कर रहा हूँ. If it is Apple, then it becomes मैकिनटॉश, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है ओके. सफारी, डिफरेंट नेम से उसको हर जनरेशन में उन लोग चेंज करते रहते हैं. बेसिकली ये ऊपर का मशीन अगर कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, सिंपल ऑन होना है, तो वो तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, बिकॉज द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम, it is a software, and it has a list of commands. It has got multiple list of commands. It has got a command series which can be lakhs and lakhs का
कोडिंग, बिकॉज जब आप एक कंप्यूटर पर बैठते हो, राइट अप फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट द मशीन टिल द टाइम यू एंड द मशीन, एवरी क्लिक दैट यू डू, क्लिक 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 इज अ कमांड. देर इज अ येस अ नो, अ येस अ नो. जितने येस करोगे उतने आगे जाओगे, जितने नो करोगे उतने आपके ऑप्शंस कम होते जाएंगे. सो आई रिपीट माई सेल्फ, समथिंग इज वेरी सिमिलर इन द थिंकिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. यू सी, ये ऊपर का बुक कीपिंग हो गया कि मैं बुक लेके आ गया, बट ये चलेगा कैसे, इसके अंदर मैं क्या रिकॉर्डिंग करूं, इसके अंदर कौन सा प्रोग्राम, कौन से स्टेप्स, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए. फॉर दैट यू रिक्वायर द सॉफ्टवेयर, एंड द अकाउंटेंसी इज काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर. Okay, it has the rules and regulations, it has the programs, it will tell you how to start, how to be in the middle, and how to end everything. So please note, this thing, the hardware, that is not the most important thing, okay, but the software is the most important thing, क्योंकि otherwise इसका कोई काम नहीं है. हाँ, so let me go back. तो आप सोच सकते हो that bookkeeping is the smaller thing, accountancy is the bigger aspect. Let me change my position, क्योंकि Mr. Professor Robert Newton Anthony, okay, don't say sir I have heard about Robert Downing Jr. Oh sir, Iron Man है ना sir, very superb movies. Sir, is this that person? ना, it's neither is papa. Okay, so Professor Robert Newton Anthony ने एक definition so to say दिया है किसके लिए, अकाउंटेंसी के लिए. और उन्होंने क्या कहा है, नियरली, प्लीज आप ध्यान देना बगल में, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, छोटा, मीडियम, बड़ा, वेरी वेरी बिग, हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम. आगे, इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, जमा करना, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ओके, लेट मी रिपीट दिस once again and clarify कि मैं क्या बोल रहा हूँ. So accountancy का एक definition, well I wouldn't say exactly definition, and please don't worry sir, do I have to by heart this thing? Absolutely not. Okay, by heart नहीं करना. इन्होंने बोला है कि accountancy है क्या, वो आपको मैं clarify करके दे रहा हूँ. इन्होंने बोला है accountancy हर business establishment में होता है, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, और उस अकाउंटेंसी में किया क्या जाता है. द फर्स्ट थिंग, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड. द सेकेंड थिंग, इट इज समराइज्ड. द थर्ड थिंग, इट इज एनालाइज्ड, एंड देन इट इज रिपोर्टेड. प्लीज नोट, लेट्स जस्ट, आई विल मल्टीपल टाइम्स नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशन, जो इन द कंट्री ऑफ इंडिया in one of the biggest vaccination drives is being conducted. Okay, so in vaccination हो रहा है something like accountancy. What are the steps? सबसे पहले information collect हो रहा है, because whenever somebody is going to get vaccinated, ऐसे ही नहीं कि भाई चलो इंजेक्शन लगा लिया, that's it, घर पे आ जाते हैं, नहीं, वो कर लिया, बट अभी तुम्हारा information अपडेट करना पड़ेगा. हमको कलेक्ट करना पड़ेगा. तुम्हारा आधार नंबर क्या है, तुमको कौन से टाइप का वैक्सीन दिया, कौन सा डोज दिया, कौन से डे पे दिया, कौन से टाइम को दिया, बिकॉज देन द सेकेंड डोज का ना आपको 84 डेज के बाद में, या वट एवर इज द गवर्नमेंट डिक्लेरेशन, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको तभी आना पड़ेगा. ओके, हाँ. सो वैक्सीनेशन में सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको समराइज किया जाता है कि इन अ डे इफ देयर वाज अ वैक्सीनेशन ड्राइव इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, इन अ पर्टिकुलर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, म्यूनसिपल स्कूल, ओके, कि कितने लोग यहाँ पर आए थे, कितने लोगों को कौन सा फर्स्ट डोज दिया गया, सेकेंड डोज दिया गया, 18 से 44 थे, 45 से ऊपर थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ मेनी. ओके, उसके बाद में एनालिसिस इज ऑल्सो डन. एनालिसिस में क्या होता है, लेट्स से परसेंटेज, कि इतने परसेंटेज के लोग फर्स्ट डोज के लिए आए थे, इतने परसेंटेज 18 to 45 में थे, इतने परसेंटेज सेकेंड डोज के लिए आए थे, वो 45. दैट इज एनालिसिस, कैलकुलेशंस, एंड द लास्ट इज रिपोर्टिंग. दैट इज व्हाट यू सी ऑन द कोविन वेबसाइट, कि एवरी डे मल्टीपल टाइम्स their report gets refreshed. How many people in India, how many people in Maharashtra, how many people in Andhra Pradesh, etc etc etc. तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, कलेक्ट करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, एंड रिपोर्ट करने का, इज व्हाट इज डन इन अकाउंटेंसी. एंड इन फ्यूचर व्हेनेवर वी स्टार्ट दिस इन अ लॉट मोर सीरियस मैनर, exactly is what we are also going to do. We will also do collecting, we will also do summarizing, we will also do analyzing, and we will also do reporting. Okay, let me change my position and let me take this story ahead. So
well, story is not the very correct word to use. Okay, the truth, the fact, okay, this is not a story, it's all fact. Now accounting कौन से बेसिस पे किया जाता है? ओके, सी एवरीथिंग हैज अ बेस, एवरी बिल्डिंग हैज अ बेस, क्योंकि ऑब्वियसली ना हवा में तो वो खड़ी नहीं होती है. ओके, तो देयर हैज टू बी अ बेस. तो अकाउंटिंग का बेस क्या है, ग्राउंड वर्क क्या है? देयर आर टू थिंग्स. इट कैन आइदर बी कॉल्ड एज कैश बेसिस or it can be either called as accrual or mercantile basis. Okay, again I always keep on saying, maybe my pronunciation is not absolutely accurate, but अगर थोड़ी गलती हो गई प्रोनाउंसिएशन में तो माफ़ कर देना. ओके, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के दे सकते हो, एटलीस्ट स्पेलिंग लिख के दे सकते हो. ओके, वो सुधारने की कोशिश की जाएगी. हाँ, सो कैश बेसिस क्या होता है और अक्रूवल बेसिस क्या होता है? वेल, इन डिफरेंट कंट्रीज जो घर बनते हैं ना, वो अलग अलग बेसिस पे बनते हैं. हमारे यहाँ पर दैट इज़ इन इंडिया द प्रायोरिटी इज़ गिवन के द बेस हैज़ टू बी कॉन्क्रीट, इट हैज़ टू बी सीमेंट, इट हैज़ टू बी स्टोन्स. बट देर आर मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे वुड के ही बेसिस पर उन लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ओके, बिकॉज वहाँ पे कॉन्क्रीट सीमेंट की ज़रूरत नहीं है. वुड इज़ अ बेटर बेस ग्राउंड फॉर देम. Similarly, in accountancy, there are two bases. One, cash basis. Two, accrual or mercantile basis. Cash basis is a little self-explanatory. मतलब क्या है? You do understand. What do you mean by cash? Cash, पैसा. यहाँ पे डॉलर है, उसमें आप रुपीज ले लो. Now, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कैसे होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होता है? पैसा आया लिखो और पैसा गया लिखो, और अगर कुछ नहीं हुआ पैसे को तो मत लिखो. क्यों लिखने का है? बिकॉज द वर्ड कैश बेसिस मीन ओनली इफ देर इज मूवमेंट डिस्को ऑफ कैश, डांडिया ऑफ कैश, देन ओनली यू विल राइट. इफ नॉट यू विल नॉट राइट. ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? January month started. You are somebody who is staying in a rented प्लीज. 31st को लैंडलॉर्ड आता है, जैन के 31st को वो आया, 31st को वो आया, एंड ही सेड पे मी माई रेंट. ओके, 5,000, 10,000 रखो. सो आई रिपीट माई सेल्फ, यू गेव हिम 10,000. तो इन योर रिकॉर्ड यू विल राइट रेंट पेड. क्यों लिखा? पे किया ना पैसा, कैश, तो लिखेगा मैं. गुड, करेक्ट, बिकॉज दैट इज कैश बेसिस. अच्छा, फेब्रुवरी में 28, 29 वापस आया वो, फिर से मांगा रेंट, मैंने फिर से दे दिया, फिर लिखा मैंने फेब्रुवरी रेंट पेड, मार्च रेंट पेड, अप्रैल रेंट पेड. अनफॉर्चुनेटली आपका 3 महीने के लिए ओके काम नहीं था. यू डिडंट हैव अ जॉब. मई, जून, जुलाई यू डिडंट हैव अ जॉब. तो क्या हो गया? तो सर पगार नहीं मिला, पगार नहीं मिला तो पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले तो मई के एंड में आया. बट आपने रिक्वेस्ट किया किससे? लैंडलॉर्ड से, कि सर आई नॉट एम्प्लॉयड राइट नाउ, नौकरी नहीं है सर, आप थोड़ा प्लीज़ अंडरस्टैंड करो ना, आप नेक्स्ट मंथ में आना, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में 10,000 दूंगा. प्लीज़ नोट. सो इन द मंथ ऑफ मे, एट द एंड ऑफ मे, विल यू राइट मे रेंट पेड? नो. क्यों? पैसा नहीं दिया. जून के एंड में 3 महीने तक यू डिडंट हैव अ जॉब, 3 महीने तक पैसे नहीं मिले हैं, आपने उधारी लेकर खाना खाया है. सो जून के एंड में वो आएगा, सर प्लीज. जुलाई के एंड में आएगा, सर वेरी प्लीज. आपसे प्लीज प्लीज बोल के 3 महीना आपने निकाल लिया. यू डिडंट पे, यू डिड नॉट पे. सो आई रिपीट माई सेल्फ, सो 3 months यू डिडंट राइट रेंट. क्यों? अरे पैसे दिए नहीं तो क्यों लिखने के. फिर आया अगस्त, यू गॉट अ गुड जॉब, ओके, एंड आपने पिछले 4 महीने का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 40,000 rupees. When the landlord came, you said him, sir, thank you that you allowed me to stay in your house. Keep 40,000. I'll write 40,000. Why did you write 40,000 together? Well, I paid cash na. Please note. Very simple. What does cash basis mean? कब लिखूंगा?
जब कैश भरूंगा तब लिखूंगा। अगर कैश नहीं भरूंगा, भले ही मंथ ऑफ मई में आई वॉज स्टेइंग इन दिस हाउस, रेंट का खर्चा पैदा हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड माई हिंदी एंड माई इंग्लिश। मई मंथ में रेंट पैदा हुआ, पे नहीं हुआ। जून मंथ में रेंट पैदा हुआ, पे नहीं हुआ। जुलाई मंथ में पैदा हुआ, पे नहीं हुआ। अगस्त मंथ में पैदा हुआ। खर्चा तो हर दिन पैदा होता है, ओके, बिकॉज जैसे ही दिन ढलता है काफ़ी खर्चे पैदा हो जाते हैं, बट वेदर आपने उसको पे किया कि नहीं वो अलग बात है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पैदा होना, पे करना। व्हेन यू विल हैव इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम, कोई ना कोई तो सप्लाई करता है, ओके, टाटा होगा, अडानी रहेगा, some company depending upon the state that you stay in Maharashtra, okay, there will be an electricity supplier. When those electricity supplier give you the connection, electricity चालू, तुम्हारा टीवी चालू है, तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तुम्हारा गीजर चालू है, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर चालू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1 तारीख हो गया, सो एट द एंड डू यू गेट 1 तारीख के एंड को अ बिल, a SMS, a email, a WhatsApp from the Adani company, from the electricity supply company? No. आपका आज का 20 रुपया हो गया, दो नहीं, मैंने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, पे नहीं किया। 2 तारीख को फिर से इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा, 3 तारीख को यूज करूंगा, 4 तारीख को यूज करूंगा। आई कीप ऑन यूजिंग इट। सो एवरी डे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पैदा जरूर होता है, मैं पे नहीं करता, बिकॉज इट इज वेरी टीडियस। सर हर दिन क्या देने का, 30-40 30-40 30-40, महीने के एंड में से, हाँ तो तुम महीने के एंड में पे करते हो। कैश बेसिस इज दैट। जब खर्चा पैदा होता है आप वो नहीं देखते, जब वो पे किया जाता है आप तब लिखते हो, ओके। तो मे बी आपने 2-3 साल पुराना रेंट, क्योंकि आपको काम ही नहीं था, कोविड ये वो, एंड द लैंडलॉर्ड वाज वेरी हेल्पफुल, उसने आपको तकलीफ दिया ही नहीं, ओके। वो सिर्फ मैसेज करता था, कैन आई कम टू टेक द रेंट, एंड यू लाइक नो सर आई डोंट हैव मनी, चलो रहने दो, चलो रहने। ऐसे करके 2-3 साल के बाद में आपने रेंट दिया, तो आप तो 2-3 साल के बाद में लिखोगे इफ़ यू राइट ऑन कैश बेसिस। सो प्लीज नोट, इन इंडिया, ओके, देयर आर मैनी पीपल, इनफैक्ट मैनी पढ़ा लिखा लोग, जिन लोग कैश बेसिस पे, रोकड़ा कैश बेसिस पे अपना अकाउंटिंग करते हैं। उसमें से कौन आप देख सकते हो, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ओके, NGOs, ओके, जो सोशल सर्विस करते हैं, जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जिन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जिन सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जिन लोगों को मेडिकल अटेंशन चाहिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस का काम है सर्विस। तो अकाउंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, तो वो अकाउंट्स जो इजी वाला स्टाइल है ना, वो इजी वाला स्टाइल में करते हैं। कैश बेसिस इज द इजी वाला स्टाइल, बिकॉज जो सेकेंड है, व्हाट इज दैट, अक्रूवल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, that is not the easy wala style, that is the complicated, but it is also called as the scientific wala style. Now please understand, what do you mean by scientific basis? Okay, कि in accrual basis which is time based, ये ऊपर आपको दिखता है टाइम का मतलब क्या है, जैन के एंड में जैन का रेंट का टाइम हो गया, तुमने पे किया नहीं किया, आई एम नॉट आस्किंग यू, जैन 31st को यू हैव टू राइट रेंट फॉर जैन। बट इफ यू विल से सर लैंडलॉर्ड तो आया ही नहीं, घर का मालिक, उसको तो अपन ने पैसे दिए ही नहीं, वो तो सर उसकी शादी हो गई, वो हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जा चुका है, तो सर जब वो आएगा तब देखेंगे ना। नो, अक्रूवल बेसिस वैसा नहीं है, अक्रूवल बेसिस टाइम पे है, एंड दैट इज द रीजन मेनी पीपल से ना, आपके माँ बाप ने भी आपको बोला रहेगा, टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे काम करो, टाइम पे जो चीज का टाइम आया है वो टाइम के हिसाब से कंप्लीट करो, ओके। एंड मेनी टाइम्स वी फॉल बैक, क्योंकि हम लोग थोड़ा आलसीपन करते हैं। अक्रूवल बेसिस में आलसीपन नहीं चलता, कैश बेसिस में चल जाएगा,
क्यों? अरे सर जब पैसा देगा ना तब लिखेगा, काय को टेंशन लेने का. टाइम, accrual basis, and 90% of accountancy in India is done on accrual basis. Please note, very important, there are many students जो ना 3-4-5 साल की पढ़ाई करते हैं of accounts, they go to college for 3-4 years, but when they are asked accountancy is done on what basis, they are like, is there any basis? I never knew. Yes my dear, in fact for the past 4 years what you're learning is accrual basis. There are only 1-2 chapters which teach you cash basis, because cash basis is not the scientific way to do record keeping, but accrual basis is, I repeat myself, Jan end you write the rent, okay, you write the electricity, whether electricity bill आया नहीं आया does not matter, तुम लिखो, तुम्हारे रिकॉर्ड में लिखो. क्यों? पैदा हुआ. You understand the 2 words जो मैं बोला था, पैदा और पे. कैश बेसिस इज ऑन पेड बेसिस. पैसा मिला तो लिखेगा, पैसा दिया तो लिखेगा, बट अक्रूवल इज ऑन टाइम बेसिस. टाइम हो गया लिखो, पैसा तुम बाद में दो, 10 दिन बाद दो, 10 साल बाद में दो. टाइम हो गया ना तो इनकम लिखो, एक्सपेंस, बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंस इन एनी बिजनेस. इनकम एक्सपेंस तो उसको रिकॉर्ड करना है. इफ यू गेट सैलरी वो आपका इनकम है, इफ यू पे समबडी इलेक्ट्रिसिटी और रेंट वो आपका एक्सपेंस है. बट कब लिखो, दैट डिपेंड्स अपॉन द बेसिस, एंड देयर आर 2 बेसिस इन अकाउंटेंसी. वन कॉल्ड एज कैश बेसिस, जो सिर्फ कैश को, नोट को देखता है, ओके, रुपीस को, डॉलर्स को देखता है, जो भी कंट्री है. और अक्रूवल मतलब मर्केंटाइल, या तो उसको आप बोल सकते हो क्या, पैदा बेसिस. वो सब हिंदी में मत समझना, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये पैदा का मतलब क्या है, मैं रिक्शा में बैठा और 18 रुपीज़ का मीटर पे चालू हो गया, मतलब 18 रुपीज़ पैदा हो गया रिक्शा का भाड़ा. सर 20 हो गया, 20 रुपीज़ पैदा हो गया. पे कब करने का, पे जब तुम्हारा घर पहुंच जाएगा, जब तुम स्टेशन पहुंच जाओगे तब पे कर लेना, मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे तब पे कर लेना. देयर आर 2 बेसिस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ये वर्डिंग्स याद रखने, कैश बेसिस, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस. इन द टेक्स्ट बुक देयर इज वन मोर, हाइब्रिड बेसिस. अब ये हाइब्रिड का मतलब क्या है, वो कैश भी है और अक्रूवल भी है. दैट इज इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है, इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. तो फिर बात करके कोई मतलब बनता नहीं है. जो प्रैक्टिकल है, जो एप्लीकेबल है, जो वर्जन्स चल रहे हैं, दैट इज व्हाट आई विल डिस्कस. ओके, लेट्स गो ऑन अहेड. 4 थिंग्स जो आपको अकाउंटेंसी में दिखने वाले हैं. ओके, व्हाट आर द 4 थिंग्स? ये उसके क्या है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. व्हाट आर दे? वेल, ये ऊपर आप देख सकते हो. हाँ, रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड द लास्ट थिंग कंपेरेबिलिटी. सो वेन एवर, बिकॉज आप कैश बेसिस पे लिखो, अक्रूवल बेसिस पे लिखो, जो भी बेसिस पे लिखो, these 4 features must be there in accountancy. Only then it is going to be useful. Otherwise गड़बड़ होगा, otherwise कोई मतलब नहीं है accountancy करके. Okay, let me change my position and let me take this in a little bit more detail. Okay, reliability का मतलब क्या होता है? You see, there are मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जहाँ पे कहा गया कि इंडिया के अंदर जो बाज़ार है, मार्केट, ओके, ऑब्जेक्ट्स को खरीदने का, प्रोडक्ट्स को खरीदने का, अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द मार्केट इज़ ऑनलाइन. मतलब अमेज़ॉन से लोग खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से लोग खरीदते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी रहेगा. ओके, जियो मार्ट करके बहुत जल्द जियो उसको बहुत बड़ा और करने वाला है. ऑन व्हाट डू यू लुक आउट? क्योंकि एक ही मोबाइल अगर मैं खरीदने जाऊँ, एक ब्रांड का मोबाइल, दे विल हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स. ओके, A1, A2, A3, A5, भगवान जाने कितने नाम रहते हैं. तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड अगर आप ऑनलाइन जाओ तो, कि मैं कौन सा लूँ, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा कैमरा अच्छा है, कितने कैमरा होने चाहिए, फ्रंट में कितने कैमरा, फ्लैश कितना होना चाहिए, बैटरी कितने का होना चाहिए.
So many people don't know that. They go on what? The star rating. 2 स्टार तो नहीं खास नहीं है, बहुत लोग इसका कंप्लेन कर रहे हैं. 2 स्टार, ओके. 5 स्टार, अरे 5 स्टार तो मतलब ये एकदम तगड़ा मोबाइल रहेगा. आई रिपीट, how do you find out that that product is reliable? With the rating. It makes it simple for you. Okay, there can be 30,000 reviews, but उसका जो समरी आता है ना, रेटिंग, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि ये रिलायबल है. उसी तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पार्टीज, जो लोग वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसमें से अपना अपना काम वो करके ले लेते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी होना चाहिए. बिकॉज इफ इट इज नॉट रिलायबल, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग इट? अगर एक वॉचमैन, ओके, वॉचमैन की ड्यूटी, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है कि भाई जब कोई आ रहा है उनको या तो आप लिखो या तो उनसे लिखवाओ, नाम, मोबाइल नंबर, किधर जा रहे हो, कौन से फ्लैट में जा रहे हो, ओके. तो एक रिकॉर्ड रहता है. बट अगर वॉचमैन बोलेगा नहीं नहीं जाओ जाओ मैं लिख लेता हूँ, और वॉचमैन कुछ भी नाम लिखता है, ओके, कि ये दूध वाला था, ये न्यूज़पेपर वाला था, ये बनिया था, ये ड्राइवर था, और कुछ भी नाम देता है, ये विकास था, वो विनोद था, ये वैभव था. अरे लिख तो दिया. Is it reliable? No. If something wrong happens in the society or the building or the complex, is that information, okay, going to be useful? No, because it's not reliable. तो क्या मतलब है? तो it must be reliable. Secondly, relevant, very important. The word is a little tricky to understand. What do you mean by relevant? Well, you have this thing called as AI, artificial intelligence. ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, okay. What does the word or the thinking or the concept of, not just concept, it's a reality, artificial intelligence mean that if I sit on YouTube and मुझे टेक्नोलॉजी काफ़ी पसंद है, ओके, तो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यू कार्स, न्यू मोबाइल्स, न्यू कंप्यूटर्स, ओके, उसके में न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द टेक वर्ल्ड, मैं वो काफ़ी देखता हूँ. तो यूट्यूब अंडरस्टैंड्स, ओके, फेसबुक अंडरस्टैंड्स, इंस्टाग्राम अंडरस्टैंड्स, एंड देन वो मुझे रिकमेंडेशन देती है कि सर, स्टीवन सर, आपको ये वाले का मोबाइल रिव्यू पसंद आया था, तो आपको ये भी पसंद आएगा. आपको ये वाली गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आया था, तो आपको ये भी चैनल पसंद आएगा. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट शोज मी व्हाट इज रेलेवेंट टू मी. वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज मी व्हाट इज रेलेवेंट टू मी, ओके. इफ दैट सेम थिंग is seen by my mummy who is 72, 73 years old, she will say, what is this car, what is this mobile, this desktop, this laptop, this tablet, मतलब I'm not interested in this. For her it is not relevant. हाँ, उनके लिए अच्छा ये पास्टर है, इसने ना ऐसा बाइबल को सिखाया, ऐसा मैसेज दिया, देखो ना ये स्तुति आराधना का गाना है. वो एज पे उनको वो पसंद आता है, एटलीस्ट मेरी मम्मी को, ओके. तो उनके लिए वो वाले चीज़ें पुश की जाती है, उनको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ओके. आपको इनका प्रीचिंग पसंद आया, आपको इनका भी पसंद आएगा, इनका भी पसंद आएगा, ये गाना आपको पसंद आया, ये भी वो भी. सो आई रिपीट, रेलेवेंट, ओके, कि भाई तेरा इंटरेस्ट क्या है. तो सिमिलरली अकाउंटेंसी शोज और गिव्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. कि तुमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए है हमारे पास, तुमको अलग चाहिए वो भी है हमारे पास. रेलेवेंट, वरना टाइम पास हो जाएगा, बोलेगा मेरे को तो पसंद ही नहीं है सब्जेक्ट, क्या को मैं ये पढ़ूँ, टाइम पास करूँ, हाँ, तो किताब बंद करेगा. सो अकाउंटेंसी में जो इन्फॉर्मेशन होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो रेलेवेंट होती है, वो रिलायबल होती है. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट, अंडरस्टैंडेबिलिटी. मीनिंग व्हाट, इफ यू आर समवन हु रीड्स अ पेज छोड़ो, you read one paragraph and you are like, अरे यार क्या पढ़ा मैंने, I have no idea. I started from the first word, by the time I came to the last line
I have forgotten everything before that. So you are somebody who has got so many question marks. So what was written on that page, on that paper, okay, in that newspaper, was it understandable? No. इतना लिखा है, इतना इंक वेस्ट कर दिया रे, इतना पेपर पे उन लोगों ने स्पेस ले लिया, इसकी जगह पे फोटो डाल देते, समझ में आ जाता मेरे को. यस, सच है. There are many people who understand the photograph, the image, but they will not understand the text. So basically what am I trying to come at? Just like for a small child, छोटे बच्चे 2 years, 3 years, 4 years, okay, when they are learning nursery rhymes, poems, उसमें पोएम ना 4 लाइन का रहेगा या 6 लाइन का रहेगा, फोटोग्राफ पूरे बड़े पेज का रहेगा, बिकॉज दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड दैट मेक्स इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द चाइल्ड. Similarly, in accountancy, the information which is there has to be understandable. Just because, okay, आप कोई, if you're a commerce student and you pick up an MBBS textbook जो डॉक्टर बनने के लिए काम आता है, जिसमें पूरा बायोलॉजी उन लोग ने दिया है of the human body, you are not going to understand 99% of the wordings in that. Why? You didn't learn it. आपको वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तुमको नहीं है, दूसरे किसी को वो रेलेवेंट बन जाता है, तुम्हारे लिए वो इररेलेवेंट है. सो अकाउंटेंसी हैज़ टू मेक श्योर दैट व्हाट इज देयर, व्हाट इज रिटन, द वे इट इज प्रेजेंटेड, इट इज अंडरस्टैंडेबल. जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत लोग हैं. अगर आप मेरे पीछे देखो, इंटरनली कंपनी के अंदर अकाउंटेंसी बहुत लोग पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पैसों का इंफॉर्मेशन, और कंपनी के बाहर भी बहुत लोग हैं जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, ये कंपनी काम कैसे कर रही है, ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है कि बुरा है, कैसे कैलकुलेट करूँ मैं इंफॉर्मेशन से. इट हैज़ टू बी अंडरस्टैंडेबल, ओके. तो इट हैज़ टू बी reliable, it has to be relevant, and it has to be understandable. And the last one for today, what? Comparability. That is one of the very important concepts. Q, you see, when you write numbers, okay, very simple. आप जब मार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए, अगर आपको 2 जूते पसंद आते हैं एंड द प्राइस इज 19-20, आप कंपेयर करोगे, आप दुकानदार को पूछोगे, सेल्समैन को पूछोगे कि मतलब दे आर द सेम प्राइस बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, कैन यू टेल मी, ओके, इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है. तो आई रिपीट, यू विल कंपेयर, एंड एवरीबडी, यू, मी, when we are buying a mobile phone, we compare. When we are buying a television set, we compare. When we are buying a shirt, a t-shirt, we compare. We do this thing called as comparison every time and in every area. जहाँ पर भी हमारे पास चॉइस मिलता है, यार मैं जियो का कनेक्शन लूँगा तो मेरे को कितना डेटा मिलेगा, फ्री कितना मिलेगा, पर डे कितना मिलेगा, एयरटेल का लूँगा, वोडाफोन का लूँगा, तो यू कंपेयर इन एवरीथिंग. हमारी वो आदत बन चुकी है. सो इंग्लिश में कहा जाता है एप्पल टू एप्पल. नाउ व्हाट इज दिस फ्रेज एप्पल टू एप्पल, कि बाबा इफ यू हैव टू कंपेयर, यू कैन टेक एन एप्पल एंड अ पेयर, ओके, एन एप्पल एंड अ मैंगो. हाउ आर यू कंपेयरिंग दैट? लुक अलग रहेगा, टेस्ट अलग रहेगा, स्वीटनेस अलग रहेगा, क्योंकि दे आर नॉट द सेम. हाउ डू यू कंपेयर? डोंट कंपेयर, गलत है. So if you want to make sure it is apple to apple and then only comparison is possible, तो वो जो thing है comparability, वो accountancy कराता है. In computers, what is behind me is Windows operating system. What is above me is the Apple operating system. Can you compare them? Absolutely not. बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं. उसके फीचर्स अलग है, वो दिखता अलग है, वो अलग फील देता है. इसके फीचर्स अलग है, ये दिखता अलग है, इसके ग्राफिक्स अलग होते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हो. बट जो लोग, मैं इफ़ आई एम अ यूज़र, किसका, मैं कंपनी ए का अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं कंपनी बी का अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो आई वॉन्ट टू कंपेयर बिटवीन बोथ. बिकॉज अगर मेरे पास पैसा है
तो मेरे को वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, या तो कंपनी ए या तो कंपनी बी, तो कंपेयर करूँगा। I will not without any calculation just take my money and put it. No, I will compare. For that, the accountancy that company does should give me the facility of comparability. अगर ये जर्मन भाषा में लिख रहा है और ये संस्कृत भाषा में लिख रहा है, भाषा अपने अपने जगह पे सही है, बट कंपेयर कैसे करोगे? सो अकाउंटेंसी जनरली ओके इज कंपेरेबल बिकॉज इट हैज़ टू, वो खुद के लिए कम आता है, वो दूसरों के लिए ज़्यादा काम आता है। ओके, इफ़ देर इज़ अ बैंक जो सोच रहा है इसको लोन दूँ कि उसको लोन दूँ, ओके, वो बैंक को वो बिजनेसमैन के अकाउंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। इसका अकाउंट्स अच्छा है, इसका अकाउंट्स अच्छा है, इसके अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट है, उसके अकाउंट में, दे हैव टू एनालाइज, कंपेयर करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ अ बेटर डील, वो उसके साथ में आगे जाएगी। बुक कीपिंग छोटा, अकाउंटेंसी बड़ा। Accountancy should have two bases, cash basis, accrual basis. पैदा होना, पे करना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एंड इट हैज़ टू हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, reliability, relevance, understandability and comparability. The next time we meet, आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। ओके, the next time we meet I will continue with the थिंग्स कॉल्ड एज टर्मिनोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है वो मैं आपको अगली बार ही बताऊंगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म एज मैनी फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार, ओके, वो कहाँ पे भी हो सकते हैं इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज वॉट आई एम टीचिंग इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विच इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यू कैन टेल देम कि ऑन स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, द लेक्चर्स फॉर FIJC अकाउंटेंसी हैव स्टार्टेड। स्लोली जा रहा हूँ ताकि ये जो भी आपका एडमिशन का प्रोसेस है, रिज़ल्ट का प्रोसेस है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जब तक आपका एडमिशन भी उसके अंदर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, आप यूट्यूब के बारे में थोड़ा कम जानते हो, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। एक डिब्बा आता है, उस पर सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबा देना। एक बेल आइकन आता है, वो घंटी बजा लेना, सो दैट व्हेनेवर स्टीवन सर और उनकी टीम आपके लिए एक लेक्चर लेकर आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन, जानकारी, अपडेट आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई डाउट रहेगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो वो ऑर्गेनाइज रहता है कि ये वीडियो का ये कमेंट था, ये वीडियो का ये कमेंट था। टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, ऑफ योर lovely family members. Okay, good day to all of you. God bless. Bye.